السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اتاپور پولیس اسٹیشن کے حدود حسن نگر میں گھروں کی تلاشی۔ راجندر نگر کے ڈی سی پی سی ایچ سرینواس کی نگرانی میں بڑے پیمانے پر ناکہ بندی کر کے تلاشی کی گئی۔ اس دوران غیر قانونی شراب اور بنا ڈاکیومنٹس کی گاڑیوں کے ضبط کیا گیا ہے اور 15 راؤڈی شیٹرز کے گھروں کی تلاشی لی گئی۔ ڈی جی پی جتیندر نے ریاستی اطلاعات، شہری تعلقات اور محصولات کے وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی سے بشکریہ ملاقات کی۔ ممکنہ طور پر قریبی جنگلاتی علاقے میں بادل پھٹنے سے ضلع پلوامہ کی تحصیل راجپورہ کے اچگوزا علاقے میں سیلاب آ گیا تھا۔ گاؤں اور کئی رہائشی مکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ پانی کی سطح اب آہستہ آہستہ کم ہو چکی ہے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں کا محکمہ بلدیات کے پرنسپل سیکرٹری دانا کشور نے معائنہ کیا ہے۔ سب سے پہلے صحافیوں نے کالونی میں پلاپیٹا سرکل کے آس پاس کے علاقوں میں سڑکوں پر پیچ ورکرز کی وجہ سے پڑے گڑھوں کا معائنہ کرنے کے بعد مقامی حکام کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ جو بھی کام کیے جاتے ہیں واضح رہے کہ سڑک کی تزئین و آرائش وقتاً فوقتاً مکمل کی جائے۔ زونل کمشنر کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اسی علاقے میں واصل لاگنگ پوائنٹ کی نشاندہی کرے اور سمپ کے تعمیر کے لیے مناسب جگہ تلاش کرے۔ چونکہ برسات کے موسم میں متعدد بیماری پھیلنے کا امکان ہوتا ہے، اسی لیے جے ایچ ایم سی کے اندر کچرے کے خطرے سے 2-4 مکانات پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جوبلی ہلز روڈ نمبر 45، روڈ نمبر 70، گوتم نگر بستی، دین دیال نگر بستی اور فلم نگر بی ای ٹی پارک کے علاقوں کا معائنہ کیا گیا جہاں کثرت سے کچرا پھینکا جاتا ہے۔ وہاں کام اور صفائی کے کارکنوں سے بات کی گئی۔ ایس ایف اے کرنے والے ان کے مسائل کو پوچھا گیا ہے۔ کارکردگی کی تفصیلات پوچھی گئی ہے۔ صفائی کے کارکنوں کی حاضری کو شفاف طریقے سے ریکارڈ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اگر فیلڈ لیول پر کوئی پریشانی ہو تو کارکنوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ افسران کو آگاہ کرے۔ ورکرز کو کام کے اوقات میں یونیفارم اور ہاتھ کے دستانے پہننے اور حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔ نیز عہدیداروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر ان علاقوں پر توجہ مرکوز کرے جہاں شہر میں کوڑا کرکٹ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے علاقوں میں 2 شفٹوں میں کچرا اٹھانے کے اقدامات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایم ڈی اشوک ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ شہر کے اولڈ رامنتاپور میں واقع سیور مین پائپ لائن کی بحالی کا کام فوری طور پر شروع کرے۔ جمعہ کو انہوں نے سینئر افسران کے ساتھ سیور مین پائپ لائن کا معائنہ کیا ہے۔ 1000 ملی میٹر ڈائی پائپ لائن جس کی لمبائی 6220 میٹر ہے، ماضی میں نیشنل ریور کنزرویشن ڈائریکٹوریٹ کے فنڈ سے پرانے رامنتاپورم کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہونے والے سیوریج کو نالا چروا ایس ٹی پی کی طرف موڑنے اور اسے ٹریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا
किया था। बाद में उपल म्यूनिसिपैलिटी के अंदर रामंतापुर, श्रीनिवासनगर और रामंतापुर तालाब के इलाकों को ढांपने के लिए 600 मिलीमीटर डाई और 450 मिलीमीटर डाई पाइपलाइनों की तामीर का काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही मेन पाइपलाइन की लंबाई 7,940 मीटर तक पहुंच गई है। इस पाइपलाइन का इंतजाम उपल म्यूनिसिपल हुकाम करेंगे। बाद में ये जेएचएमसी के दायरे कार में आ गया है। बोर्ड ने 2021 में सीवरमैन का इंतजाम संभाला, जबकि शहर के मजाफाती सीवरेज की जिम्मेदारियां जलमंडल को सौंप दी गई है। ताहम नागुल मेट्रो स्टेशन से अंबरपेट तक नई सड़क बिछाने के दौरान पाइपलाइन के साथ कुछ मेन हॉल्स की मरम्मत की गई है। खास तौर पर साई बाबा नगर कॉलोनी, देवेंद्र नगर कॉलोनी और लक्ष्मी नगर कॉलोनी के इलाकों में चूंकि उनका एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, वहां गहमा गहमी का माहौल था, जिसकी वजह से मस्कुरा इलाकों के लोगों के लिए सीवरेज के मसाइल शुरू हो गए हैं। हाल ही में ये मामला जलमंडी के एमडी अशोक रेड्डी की तवज्जो में आया है। उन्होंने आज पाइपलाइन का दौरा किया और मुतल्लिका अहदेदारों को बहाली का काम करने का हुक्म दिया है। हालांकि जेएचएमसी ने पहले से ही चौक होल को साफ करने की बहुत कोशिश की। डिप्टी मेयर मोथे श्रीलता शोभन रेड्डी ने अपार्टमेंट्स एसोसिएशन को हिदायत दी है कि वो तारनाका डिवीजन में अपार्टमेंट्स एसोसिएशन से राब्ता करे। अगर अपार्टमेंट्स में घर घर जाने के बजाय डस्टबिन का एक ही जगह पर इंतजाम किया जाए तो इसका बंदोबस्त किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा है कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपार्टमेंट्स में कचरा उठाने का काम स्वच्छ ऑटो में नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए अगर गीला और खुश्क कचरा वहां डालने के लिए डब्बे लगाए जाए तो स्वच्छ ऑटो को ले जाने में आसानी होगी। उन डब्बों में रखा कचरा हुकाम को चाहिए कि वो बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स के करीब कूड़ा करकट को रोकने के लिए मुनासिब अक़दामात करे। बीआरएस पार्टी की क़ियादत में सिद्दीपेट में जबरदस्त एहतजाजी रैली। बीआरएस रैंकोंग ने सिद्दीपेट कैंप ऑफिस से अम्बेडकर सर्कल तक सियाह स्कार्फ और काले बैजेस के साथ एहतजाज किया। बीआरएस रैंक ने अम्बेडकर सर्कल में सीएम रेवंत रेड्डी दश्ती का पुतला जलाया। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने कहा है कि कोलकाता के सरकारी डॉक्टर की इस्मत दरी के खिलाफ एहतजाज के लिए सीपीआई हफ्ते से 2 दिन तक रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद करेगी। आर ने कहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी का वाकया निर्भया का एक मामला है। उन्होंने मुलजमीन की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। नारायणा ने कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ 1 से 7 सितंबर तक एहतजाजी प्रोग्राम चलाए जाएंगे। नारायणा ने जुमा को हैदराबाद मगधम भवन में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी ग्रुप के अरकान पश्मी पदमा और टी नसीमा के साथ मीडिया से बात की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह है कि डॉक्टर के साथ कुछ गुंडों ने इज्तिमाई इस्मत दरी की थी, इसे बेदर्दी से मार डाला। उन्होंने कहा है कि मगरबी बंगाल हुकूमत ने डॉक्टर रेप वाक़े के सिलसिले में जिस तरह से काम किया वो मुज़हिक़ाखेज़ था। वज़ीर आज़म और इसके अलावा वज़ीर आला ममता बनर्जी का रद्द-ए-अमल भी गलत था और उन्हें इस वाक़े की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि ये दुरुस्त नहीं है कि कुछ गुंडों ने एहतजाज के नाम पर अस्पताल पर हमला करने की कोशिश की और उनके पास ज्यादती के वाक़े के हवाले से कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा है कि मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद को एक जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, लेकिन गवर्नर ने बगैर बीजेपी लीडर और कारकुन के तौर पर बात करना इसलिए नागवारा समझा है। नारायणा ने तनकीद करते हुए कहा है कि गवर्नरी का निजाम, जिसे अवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल होना चाहिए था, सियासी तकरीरों की वजह से मुकम्मल तौर पर नौकरशाही निजाम में तब्दील हो गया है। दोया भट्टा ने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमत किसी भी रियासत की हुकूमत का साथ देती है तो इस रियासत का गवर्नर वहां के लोगों की तरफ से मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश करेगा और वो जमहूरियत की बुनियादों को तोड़ रहे हैं।
हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर मोहम्मद वलीउल्लाह समीर की क़ियादत में कांग्रेस कारकुनों ने मुफ्त बस सफर स्कीम पर उनकी नामुनासिब तबसरों पर जुमा को बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव का पुतला जलाया। केटीआर के मुतनाज़िया रिमार्क्स पर अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए कांग्रेस कारकुनों ने तारीखी चार मीनार पर एहतजाज किया है। इस प्रोग्राम में चार मीनार हल्का इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ, बहादुरपुरा हल्का इंचार्ज पी राजेश और दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। उन्होंने केटीआर के खिलाफ नारे लगाए और बीआरएस लीडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने नामुनासिब तबसरा किया है। मुजाहिरीन ने तेलंगाना खवातीन की तौहीन करने पर केटीआर की शदीद मजम्मत की है। मुफ्त बस सफर की स्कीम पर तबसरा करते हुए वलीउल्लाह समीर ने केटीआर के ब्रीडांस और बसों में रक्स के रिकॉर्डिंग के बारे में तज़हीक आमेज तबसरों पर तनकीद की है। उन्होंने केटीआर पर खवातीन के बारे में तंग नजरी और सुस्ती नजरिया दिखाने का इल्जाम लगाया और उनके तबसरे एक लीडर के बारे में गैर मुनासिब थे और खवातीन के मसाइल के तय उनके रवैये की अक्कासी नहीं करते थे। समीर ने कहा, केटीआर ने अपने नामुनासिब तबसरों से तेलंगाना की खवातीन की तौहीन की है, जिससे न सिर्फ खवातीन को मुफ्त बस सफर फराहम करने की अहमियत कम हो रही है बल्कि खवातीन के विखार की गहरी बेइज्जती भी शामिल है। समीर ने वजाहत की है कि कांग्रेस पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी हिफाजत और विखार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पाबंद रही। उन्होंने कहा है कि मुफ्त बस सफर की स्कीम खवातीन के लिए ज्यादा आजादी और नकल हरकत के हुसूल की जानिब एक कदम है और इस इक़दाम को रोकने की किसी की भी कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना खवातीन की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके हुकूक के लिए लड़ती रहेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि केटीआर जैसे कायदीन को उनके खौल फेल के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। रियासती एससी और एसटी कमीशन के अरकान ने जिला शंकर और राम बाबू नायक पुलिस अफसरान को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर एससी और एसटी जुल्म का मुकदमा दर्ज करे और कबायली बच्चों के साथ वहशियाना हमला करने वालों को सख्त सजा दे। रंगारेड्डी जिला के तहत शमशाबाद मंडल के रागुंटा टांडा गांव के एक लड़की जो 13 साल जो कल गांव के कृष्णा रेड्डी ने कुछ दिनों तक धमकी दी और इसका जिस्मानी इस्तेहसाल किया। जब तैराकी हामिला होने की तस्दीक हुई तो कृष्णा रेड्डी ने इसे ले लिया, इसे एक मारूफ आरएमपी डॉक्टर के पास दाखिल किया और अस्कात हमल कराया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब मुकामी लोगों को इस बात का इल्म हुआ और उन्होंने आरएमपी डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया क्योंकि इसने मुतासरा के अहलखाने से झूठ बोला कि वो इसके बच्चे को सेहत का मसला है और अस्पताल में दाखिल हो गया। जैसा कि कृष्णा रेड्डी ने मुतासरा के वालिदैन को अपने खुसूसियों से जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले को एससी एसटी कमीशन की तवज्जो में लाया गया था, लेकिन रियासती एससी और एसटी कमीशन के अरकान ज़ेरे इलाज लड़की की आदत की हैदराबाद और इसके वालिदैन की हौसला अफजाई की है। इस वाक़े के बारे में पूरी तरह जानकर एक कबायली नाबालिग लड़की को जिस्मानी और जहनी तौर पर परेशान करने वाले कृष्णा रेड्डी के खिलाफ एससी एसटी जुल्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसे सख्त सजा दी गई थी और पुलिस अफसरान को फौरी कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। कमीशन के अरकान ने इसे पकड़वाने का वादा किया है। अनामाया जिला रायचोटी कस्बे के तोगाटा विधि में गैस सिलेंडर फट चुका है। 2 बच्चों समेत मां की मौत। शौहर रोजी रोटी के लिए कुवैत चला गया था। ఈ రోజు ఉదయం మాకు అరౌండ్ 7:30 టైంలో ఇక్కడ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా సమాచారం వచ్చిందండి. వెంటనే మేము రెసప్ అయ్యాము సీన్కి. అయితే ఇంట్లో ఒక 3 డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. రమాదేవి గారు అని ఒక 33 years, వాళ్ళిద్దరు పిల్లలండి, ప్రభు మన్విత అని చెప్పి. అయితే వాళ్ళు ఇన్సైడ్ బోల్ట్ పెట్టుకొని లోపల నుంచి ఫైర్ వచ్చింది. పబ్లిక్ బై ఫోర్స్ ఓపెన్ చేశారు. సో అది యాక్సిడెంటలా లేక సూసైడల్ అన్నట్టు దర్యాప్తు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఇంకా దర్యాప్తు చేయాలి. లోపల ఉన్నట్టుగానే బోల్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ కాబట్టి అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి మేము దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అన్ని క్రూస్ టీము అన్నింటినీ రప్పిస్తామండి. రప్పించి అన్ని కోణాల నుంచి దర్యాప్తు చేస్తాం. नामवर डॉक्टर दिनेती सुरेधर ने कहा है कि जो लोग मरीजों की जानें बचाते हैं और डॉक्टरों की जानें महफूज नहीं हैं। डॉक्टर दिनेती सुरेधर ने हफ्ते को कलकत्ता में मेडिकल के एक तालिबे की इसमत दरी और कत्ल के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों की तरफ से शहर के रिम्स अस्पताल के अहाते में मुनक्किद किए गए धरने के साथ यकजहती का इजहार किया है। इस मौके पर धरने से खिताब करते हुए उन्होंने मुसलसल मरीजों की खिदमत और अवाम की तकालीफ का इजाला करने वाले डॉक्टरों पर हमलों को काबिल नफरत करार दिया है। उनका कहना था कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि मुस्तकबिल की बहुत सी उम्मीदों के साथ
मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले तालिबा पर कुछ साइकों ने हमला किया और ज्यादती भी की थी। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि काम की जगहों और कॉलेजों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का काफी फुक़दान रहा है। उन्होंने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों का ये मामूल बन गया है कि जब इस तरह के वाक़यात रोज़मा होते हैं तो इसकी तहक़ीक़ात करना और हाथ मिलाना। उन्होंने ऐसे इंसानी दरिंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में खवातीन के लिए खुसूसी कमरे बनाए जाए और बताया गया है कि वो खवातीन की हिफाजत पर पूरी तवज्जो मरकूज करे। उन्होंने कहा है कि कलकत्ता में मेडिकल की तालिबा के साथ पेश आने वाले वाक़े पर पूरी दुनिया हमदर्दी का इजहार कर रही है। कहा जाता है कि इस तरह के वाक़यात से खवातीन में खौफ व हरास बढ़ेगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, खास तौर पर कॉलेज और काम की जगहों पर। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स के एक वफद ने हफ्ते के रोज जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज रशी शाह से मुलाकात करते हुए कलकत्ता वाक़े के साथ साथ आदिलाबाद रिम्स मेडिकल कॉलेज में हिफाजती उमूर के हवाले और मसाइल पर एक तहरीरी याददाश्त पेश की। जिला कलेक्टर ने मसाइल के बगौर समाअत के बाद मुस्बित जवाब दिया और मसाइल के हल के लिए जरूरी इक़दाम करने का वादा किया। राखी त्यौहार के पेश नजर जूनियर डॉक्टर्स ने जिला कलेक्टर को राखी बांधी। बाद अज़ा जूनियर डॉक्टर्स ने मीडिया से बात भी की है। 4 రోజుల నుంచి జరుగుతున్న సమస్య గురించి అందరికీ తెలుసు. మరి ఆ యొక్క కోల్కతా మెడికల్ కాలేజ్లో డాక్టర్ గారిపై జరిగిన అత్యాచారం గురించి మరి కలెక్టర్ గారికి కూడా మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము. మరి మా యొక్క కాలేజ్లో ఉన్న సమస్యలు కూడా వారికి తెలుపుతూ మా కాలేజ్లో ఉన్న సమస్యల్ని కూడా మరి ఆ యొక్క సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కానీ ఏదైనా బలపరచాలని మరి వారి యొక్క మద్దతుని కోరుతూ మేము కలెక్టర్ గారిని మరి కలిసి మా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము. మరి అదేవిధంగా మండే రోజు రాఖీ సందర్భంగా ఈరోజు మేము కలెక్టర్ గారికి రాఖీ కూడా కట్టాము. సార్ మరి వారి ఫుల్ సపోర్ట్ మాకు తెలిపారు. అదేవిధంగా ఎస్పీ గారిని కూడా కలిసి మాకు కావాల్సిన అన్ని ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాటిని చెప్పి పరిష్కారాలు డెఫినెట్లీ ఎస్పీ గారు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారని కలెక్టర్ గారు చెప్పారు. మరి మేము వి థ్యాంక్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సార్ ఫర్ గివింగ్ హిస్ టైమ్ ఫర్ హిస్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ సపోర్టింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ. AIMIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने इंचार्ज वजीर बराए हैदराबाद मिस्टर पूनम प्रभाकर गारू और कलेक्टर हैदराबाद मिस्टर रणदीप IAS के साथ गवर्नमेंट स्कूल कुलसुमपुरा का दौरा करके स्कूल कैंपस का मुआयना किया और फराहम करदा सहूलियात के बारे में पहला तजुर्बा हासिल किया है। MLA ने हाल ही में चार्ज मिनिस्टर और इसके अलावा JHMC MLAs के मुनाकिदा जायजा मीटिंग के दौरान कारवान हल्के में स्कूलों का मुआयना करने की दरख्वास्त की है। वजीर ने असातिज़ा के सामियों और क्लासों के लिए इजाफी फर्नीचर को पुर करने की यकीन दहानी करवाई। क़ब्ल मजलिस ने स्कूल की फर्नीचर और खेलों के सामान के साथ एक जामिद पानी की टैंक की मदद की थी। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ AIMIM और पार्टी कारवान कॉरपोरेटर स्वामी यादव और AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान मौजूद रहे। निजामाबाद नागारम में के कुछ मुकामी लोगों ने इस इलाके में हालिया तामीरात के बारे में शिकायत की है। खास तौर पर एक BRS कॉरपोरेटर और दूसरे कॉरपोरेटर के शौहर ने इसमें कुलीदी रोल अदा किया और सिक्के मराजी में फ्लैट बेचकर पैसा कमाया। हाल ही में BRS हुकूमत की शिकस्त और कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद वहां तामीरात की कोशिशें की गई है। इस पस मंजर में डॉक्टर और इसके अलावा कॉलोनी ने आम रियासत में मख्तस करदा डिग्रियों की बजाय नई डिग्रियां तैयार की है। जिस इलाके में फरोख्त हुई वहां की गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। इसी तरह बोंडम और इसके अलावा भूमि वेंचर में जारी तामीरात को भी मुनहदिम किया गया है। अहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि जो कोई भी निजामाबाद और म्यूनिसिपल और रेवेन्यू अहकाम की इजाजत के बगैर कोई तामीर करेगा इसे मुनहदिम कर दिया जाएगा। आदमी कब्जा करे हुआ कहा यही मुस्लिम एरिया में, ये सलम एरिया में जिसको खाने को खाना नहीं है, कम से कम ताकि किराए से बचने के वास्ते जो गरीब लोग आके बसे हैं, मैं कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से और यहाँ के MLA साहब और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार है ये लोग आए और इसका सर्वे करें और ये लोगों को, गरीब को जो नुकसान हुआ है इसके बदले में कहीं दूसरी जगह बताएं और जो है सो इनका जो मुआवजा दे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, कोई लोग हो सकता हैदराबाद की मिसाल वहाँ का ले रहे, हैदराबाद में अलग बात है। हैदराबाद के कुछ लोगों से मैं बात किया तो हैदराबाद में भी गिरा रहे। अरे हैदराबाद कहाँ है, ये गरीब लोग है, ये इनके पास खाने नहीं है मियाँ। आज जाके देखो आंखों से आंसू टपक रहा, उनके रोना, उनका देखना, छोटे छोटे बच्चों को लेके जो ये कैसा बेसहारा कर दिए, ये कहीं का है ये कुछ
ये पुरसाने हाल नहीं है, ये कहीं की गवर्नमेंट है, ये क्या है, गवर्नमेंट की बदनामी कर रहे हैं। हो सकता है कोई इसके अंदर कोई आदमी भड़का के या कोई ये करके लोगों को मजबूर कर दिए। आप लोगों से मेरी कलेक्टर साहब, कमिश्नर गुजारिश है, इनकी बददवा खाली नहीं जाएंगी, आपकी नौकरियां चले। आज देखे म्युनिसिपल में करोड़ों रुपए पकड़े गए, अरबों रुपए पकड़े जा रहे, उनका कोई नहीं है खाइशों वाले। आए तो ये गरीबी वो मिसाल हो गई, गिरती है तलवार तो गरीब मुसलमानों के ऊपर। ये एक ही चेहरा बचा के आपको, कई लोग हैं बिल्डिंग कब्जे कर लिए, कई लोग हैं प्लाटों पे कब्जे कर लिए, दूसरे और एरिया में कम से कम इनको सहूलत दिया जाए और इनको कुछ लोन वगैरह के वास्ते या इनका चाहे इनको दूसरी जगह हमारी गुजारिश है, वरना हम अगर रोड पे निकल जाएंगे हुकूमत का जीना दुश्वार कर देंगे। ये हम लोगों को वार्निंग है, कुछ आके कलेक्टर साहब से जो है तहकीकात क्या कराए, फौरी ये काम को रोके और जो है सो इनको जो भी वाक़ई गलत है तो गलत चीज़ की तायद नहीं कर रहे हम, लेकिन उनको टाइम देना चाहिए। मजलूम है उन लोगों का क्या है। लोगों से मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बेचारे आए, ये लोग गरीबों की मदद कर रोते हैं, उसके ऊपर गरीबों के सर पे हाथ रखे और उनकी सुनवाई करे। कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी ये लोग आए। ये लोगों से मेरी गुजारिश है कि भी ये हुकूमत के रखवालों तक पहुँचाएँ। ये वाक़ई जो है, अगर वो इंक्रोचमेंट है तो फौरी इनको दूसरी जगह बताए ना भाई, हम ये इंक्रोचमेंट है बोल के ये नहीं बोल रहे, हम इनको ये करो बोल के इनको और दूसरी जगह बताएं। आप लोगों से गुजारिश है, शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया वालों का और सबका। एसएसपी कोलगाम श्री साहिल सुरंगल आईपीएस ने डीपीएल कोलगाम में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हिफाजती अहकामात, तयनाती प्लान वगैरह से मुतालिक एक जामी मीटिंग की। मीटिंग में एडिशनल एसपी कोलगाम, एडिशनल एसपी NHW हाजीगंज, तमाम जीओस, SHOs, ICPP और PC समेत अफसरान मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान पोलिंग के मुकामात और कैंपिंग साइट से दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली, इलेक्शन के बगैर किसी परेशानी के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन से मुतल्लिक दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। SSP कोलगाम ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो आम लोगों के साथ खुशगवार और इंतखाबी अमल के दौरान SOPs पर अमल करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमाई खतूत पर अमल करे और जिला में काम करने वाले दीगर फोर्सेस के साथ मिलकर हम आहंगी बरकरार रखे ताकि हकीकी वक्त पर कार्रवाई की जा सके। किसी भी हंगामी सूरत हाल और इसके मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से गुरेज किया जाता है और तमाम अफसरान पर जोर दिया है कि वो लोगों को अपने वोट की आईनी हक के इस्तेमाल में सहूलत फराहम करते रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि आज के वाइल में फॉक्सकॉन के चेयरमैन मिस्टर यंग लीव से मिलकर खुशी हुई है। हमने हिंदुस्तान और दुनिया में तकनीकी इख्तिरात के मुस्तकबिल पर दिलकश गुफ्तगू की। सही सपोर्ट के साथ हिंदुस्तान के टेक इंडस्ट्री को एक नुमायां छलांग के लिए पोजीशन दी जा सकती है। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इंकशाफ किया है कि दशहरा से यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए मुख्तलिफ शोबों के कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिसे रियासत के वज़ीर आला के ख्यालात के मुताबिक शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्किल यूनिवर्सिटी की जानिब से तकरीबन 20 कोर्सेज की निशानदही की गई है, जिनमें से 6 कोर्सेज को दशहरा के त्यौहार से शुरू करने का फैसला किया गया है। इस मीटिंग में रियासती हुकूमत के मालियात और सनअत के महकमों के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामा कृष्णा राव, जयेश रंजन महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बर्रार वेंकटेशम और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के चीफ सेक्रेटरी शेषाद्री, TGIIC के MD विष्णुवर्धन रेड्डी और रियासती आला तालीमी काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने शिरकत की। प्रोफेसर वेंकटा रमन्ना, श्रीनी राजू, VVLS सुब्बाराव और दीगर शांति कुमारी ने शिरकत की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि रियासत के अलर्ट की गई 57 एकड़ अराजी पर इस यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की तामीराती काम का संग बुनियाद रखा और तामीराती काम मुकम्मल होने तक यूनिवर्सिटी को एक आर्जी इमारत में रखा जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि इसका एहतमाम इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आइंदा महेंद्र को पहले ही इस यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन और श्रीनिवासा सी राजू को शरीक चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किया गया। जगतियाल जिला में डॉक्टरों का एहतजाज, BJ और PG तालिबे इल्म की हिमायत में आज मेडिकल सर्विस बंद। कोलकाता वाक़े के मुजरिमों को फांसी दी जाए। कोलकाता में एक डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ जगतियाल जिला के कोरटला में डॉक्टरों का एहतजाज किया गया।
मुल्क की सबसे बड़ी तिब्बी अमले की तंजीम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज मुल्कगीर हड़ताल शुरू कर दी है। एक दहाई में सबसे बड़ी हड़ताल समझी जाने वाली इस हड़ताल में कई तिब्बी खिदमत ठप होकर रह गई है। कोलकाता के आरजी केयर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपने फराइज की अंजामदही के दौरान एक 31 साल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल ने मुल्क भर में खलबली मचा दी है। 9 अगस्त को पेश आने वाले इस वाक़े ने कोलकाता में जबरदस्त एहतजाज को जन्म दे दिया है, जिसकी वजह से मेडिकल ग्रुप्स ने मुल्क भर में एहतजाज और हड़तालें शुरू कर दी है। इस एहतजाज में डॉक्टर जगदीश, डॉक्टर अनूप राव और डॉक्टर दिलीप राव, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर रमेश, दीगर डॉक्टर्स मौजूद रहे। కొంచెం ఇబ్బంది అయినప్పటికీ మా డాక్టర్ల సమస్యలు తీరాలని, మా డాక్టర్లకు ప్రొటెక్షన్ ఉండాలని మేము కోరుకుంటూ ఈ ర్యాలీ చేయడం జరిగింది. అదే మాదిరిగా మేము ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏం కోరుతున్నామంటే మా డాక్టర్లకు ఒక ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకురావాలని, అదే మాదిరిగా మా డాక్టర్లను సేవ్ చేసే ఒక అమెండ్మెంట్ తీసుకురావాలని పార్లమెంట్లో మేము కోరుకుంటూ, అదే మాదిరిగా ముఖ్యంగా మేము కొడుకులలో ఉన్న అన్ని भैंसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हिदायत पर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कोलकाता की खातून डॉक्टर की इस्मत रेजी व कत्ल के खिलाफ ओपीडी खिदमात को 24 घंटे के लिए बंद बनाते हुए डॉक्टर्स एसोसिएशन से रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए बस स्टैंड के रूबरू अम्बेडकर मुजस्सिमा अहाते में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया और भैंसा आरडीओ कोमल रेड्डी के अलावा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार आईपीएस को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मज़कूरा वाक़यात में मुलव्विस खातियों को मौत की सजा देने और डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। इस एहतजाज में डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, नर्सेस, मेडिकल शॉप्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों की कसीर तादाद मौजूद रही। साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहां उन्होंने किसानों के कर्ज मुआफी के वादे को जुज़वी तौर पर लागू करके और अपने तमाम वादों को पूरा करने का बहाना करके आवाम को गुमराह करने के लिए कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। असेंबली इंतखाबात के दौरान रेवंत रेड्डी ने दावा किया था कि कर्ज की मुआफी पर 40,000 करोड़ लागत आएगी और सोनिया गांधी को तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर 9 दिसंबर तक कर्ज मुआफ करने का वादा किया था। ताहम ये वादा पूरा नहीं हुआ है। बाद में पार्लिमानी इंतखाबात जीतने की कोशिश में रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि कर्ज की मुआफी पर 31,000 करोड़ लागत आएगी और 15 अगस्त तक मुआफ करने का वादा किया था, लेकिन बजट में सिर्फ 26,000 करोड़ मख्तस किए गए थे। हरीश राव ने तजादात पर सवाल उठाया, इस बात की निशानदही करते हुए कि नंबर बदलते रहते हैं, जिससे शुकूक पैदा होते हैं कि किन किसानों को बाहर रखा गया है और क्यों। हरीश राव ने रोशनी डाली है कि यौम आज़ादी पर रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि कर्ज की मुआफी मुकम्मल हो गई है, ताहम असल में 22 लाख किसानों के लिए सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मुआफ किए गए, जो असल में वादा किए गए 40 लाख करोड़ से कम है। इससे पता चलता है कि बगैर वजाहत की 23,000 करोड़ की कटौती की गई है। हरीश राव ने मजीद निशानदही की है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात से पहले 31,000 करोड़ रुपए के वादे के मुकाबले 14,000 करोड़ रुपए में कटौती की गई है और बजट में मख्तस करदा 26,000 में भी कटौती की गई है। आप जगह, तारीख और वक्त का इंतखाब करें और आइए किसी भी जिला, हल्के या गाँव में चलते हैं, आपका हल्का या मेरा, उन्होंने चैलेंज किया है। हरीश राव ने जोर देकर कहा है कि रेवंत रेड्डी के बरक्स वो वादा नहीं तोड़ते। उन्होंने हर एक गांव को तेलंगाना की आवाम के तय अपनी वाबस्तगी का यकीन दिलवाया है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी पर भी तनकीद की है कि उन्होंने इस्तीफा देने का मुतालबा किया था। इसके अलावा हरीश राव ने कहा है कि इसने कर्ज की माफी को लागू करने के लिए उन देवताओं की कसम खाई थी, लेकिन उसने उन वादों को तोड़ा है। न सिर्फ किसानों को बल्कि उन देवी देवताओं को भी धोखा दिया जिनको वो पुकारते थे। हरीश राव ने सबको अपने पहले के चैलेंज की भी याद दिलाई है। मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर रेवंत रेड्डी ने 15 अगस्त तक तमाम किसानों के 2 लाख रुपए माफ कर दिए और 6 जमानतों के तहत 13 वादों को पूरा किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ताहम रेवंत रेड्डी उन जमानतों को पूरा करने में नाकाम रहे। हरीश राव ने यकीन दिलाया है कि बीआरएस मुकम्मल कर्ज मुआफी और किसानों की बहबूद के लिए लड़ते रहेंगे और उन्होंने किसानों की एक और तहरीक की क़ियादत करने के मंसूबों का ऐलान किया है। हरीश राव ने सिद्दीपेट में बीआरएस के दफ्तर पर हामिला और हालिया हमले की भी मजम्मत की है और इसे उनकी जिज़वी कर्ज मुआफी पर कांग्रेस की मायूसी को करार दिया है। अपने 10 सालों के इख्तिदार में हमने कभी इस तरह के हथकंडों का सहारा नहीं लिया। हरीश राव ने ये बात कही थी। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ऐसी कार्रवाइयां जारी रही तो संगीन नताइज बरामद होंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।